ابلیس شیطان نفرت ہے، نفرت اللہ والوں سے، ایمان والوں سے، جو نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں۔ رمضان میں کسی کو قرآن نہیں پڑھنے دوں گا۔ اس رمضان میں اس بار لوگوں کو میں خوشیاں نہیں منانے دوں گا۔ رمضان کا تہوار آنے والا تھا۔ لوگ رمضان کی خوشیوں کو لے کر بازار میں کافی چہل پہل کر رہے تھے۔ امی جان کل سے رمضان شروع ہو رہے ہیں نا، ہمیں سحری میں اٹھا دینا۔ ٹھیک ہے میرے بچوں۔ امی جان سحری کے وقت ہمیں پراٹھا بنانا۔ ہاں ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں۔ امی جان کے لیے ہمارے لیے آپ کھجلا فینی لے کر آنا۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، مجھے پتا ہے تمہیں فینی بہت پسند ہے نا۔ پاپا آپ دیکھنا، اس بار رمضان میں میں پورے 5 قرآن پڑھوں گا۔ ماشاء اللہ میرے بیٹے، اللہ تمہیں ہمت دے۔ اذان کا وقت ہونے لگتا ہے اور شیطان کے کانوں پر اذان کی آواز پڑتی ہے۔ یہ آسان میرے سر میں درد کرتی ہے۔ اس آسان کی آواز سے میرا جینا مشکل ہو جاتا ہے، میرے اندر آگ لگنے لگتی ہے۔ ادھر سب لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ بی بی سکینہ، ارے اٹھیے، سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جائیے، سب کے لیے سحری بنا دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ سکینہ سحری کے لیے کھانے کا سامان بنانے لگتی ہے اور سب لوگ سحری کرتے ہیں۔ امی جان کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، جادو۔ ابی جان آپ بھی امی جان کی طرح کھانا بنانا سیکھ لیجئے نا، تاکہ کل آپ کو شادی کر کے دوسرے گھر بھی تو جانا ہے نا۔ ہاں جاؤں گی، لیکن ابھی نہیں۔ سکینہ عبداللہ ہنستے ہیں۔ بچے کتنا لڑتے ہیں، ان کی لڑائی بھی ہمیں دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے جی۔ سحری کا سمے ختم ہونے میں 5 منٹ بچے ہیں۔ آپ سب حضرت سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد سحری کر کے مسجد میں پہنچے۔ تبھی فجر کی اذان ہوتی ہے اور سب لوگ مسجد پہنچتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ سکینہ اور مریم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تبھی سبھی لوگ نماز پڑھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کام میں ویست ہو جاتے ہیں۔ راہل اسکول جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اچھا تو بیگم، میں جا رہا ہوں، اگر آج کام مل گیا تو شام کو کچھ پھل فروٹ ضرور لے کر آؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کو کام آج مل جائے گا۔ رمضان کا پاک مہینہ شروع ہوا ہے تو اللہ کسی کو بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ سکینہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی اور عبداللہ بھی محنت مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے ان کے گھر کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور جو گھر میں پیسے رکھے ہوئے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے خرچ ہو رہے تھے۔ تبھی عبداللہ شام کو آتا ہے۔ کیا ہوا، آپ اتنے اداس کیوں؟ سکینہ، آج بھی کوئی کام نہیں ملا، یہ لو تھوڑے سے فروٹ لے کر آیا ہوں، بچوں کو دے دینا، روزہ کھولنے کے سمے کام آئیں گے۔ شام کو مغرب کی اذان ہوتی ہے اور سب لوگ روزہ کھولنے لگتے ہیں اور جو تھوڑا گھر میں ہوتا ہے وہ کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سکینہ، مجھے فکر ہو رہی ہے، میرا کئی دنوں سے کام نہیں لگ رہا ہے اور جو گھر میں پیسے رکھے ہیں وہ دھیرے دھیرے خرچ ہو رہے ہیں۔ رمضان کے بعد عید بھی تو ہے، کیسے میں اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنواؤں گا، کیسے ان کے لیے ساری نئی چیزیں لے کر آؤں گا۔ فکر نہ کریے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو رمضان میں ہی کوئی کام مل جائے گا انشاءاللہ۔ تبھی راہل آتا ہے۔ بابا جان اس بار مجھے نیا کرتا پیجامہ لا کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے میرے بیٹے۔ ایک دن مریم قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے۔ ابلیس شیطان اپنی دیویہ شکتیوں سے مریم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ مریم کے پورے گھر کو ہلانے لگتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پورا گھر ہل کیوں رہا ہے؟ کیا بھوکمپ آ رہا ہے؟ یا اللہ ہمیں بچاؤ، امی جان کہاں ہو؟ پورا گھر ہل رہا ہے۔ بیٹی مریم قرآن کو گرنے مت دینا، قرآن کو پکڑو، اپنے سینے سے لگاؤ۔ تبھی مریم جلدی سے قرآن کو اٹھاتی ہے اور قرآن کو گرنے سے بچاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ابلیس شیطان گھر کو روک دیتا ہے۔ یہ تو ابھی ٹریلر ہے، پکچر تو باقی ہے میرے دوست۔ بابا جان امی
अम्मी जान, ये क्या था? ना तो भूकंप था, फिर ये क्या हुआ अभी? ये क्या हो रहा है? पूरा घर, धरती क्यों हिल रही थी? पता नहीं बेटा, अल्लाह अपना रहम करे। बाबा जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि ये मुसीबत जल्दी से दूर हो जाए। सब लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत अदा फरमा। कुछ देर के बाद सब ठीक हो जाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर अगले दिन राहिल कुरान पढ़ रहा होता है तो शैतान कहता है कि अब तो मैं इस कुरान को ही चुरा लेकर जाऊंगा। शैतान कुरान की तरफ बढ़ता है तो उसे जलन महसूस होने लगती है। ये क्या, कुरान को चुरा क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं? मुझे ये कौन सी ताकत रोक रही है और मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? वो शैतान आग में जलने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो अपने बड़े शैतान दज्जाल के पास जाता है। आका, मैं कुरान नहीं चुरा सका। आखिर क्यों वो कुरान नहीं चुरा सका? क्योंकि हम सब एक शैतान हैं और वो अल्लाह की किताब है। शैतानों के लिए उसमें आग है और इंसानों के लिए उसमें रहमत है। हम चाह कर भी उसे नहीं चुरा सकते। हम लोगों को कुरान पढ़ने से कैसे रोकोगे? उसके लिए एक खेल खेलना होगा। हमें किसी एक नेक इंसान को ढूंढना होगा जो हमें कुरान खुद ला कर दे। ऐसा कौन करेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान तुम कैसे चुरा सकते हो। जब वो छोटा बच्चा राहिल पढ़ रहा होगा तो तुम एक बच्चे का रूप लेकर उसके पास जाना। उससे कहना कि वो मुझे भी कुरान पढ़कर सुनाए और उससे बोलना कि वो मेरे घर आकर मुझे कुरान पढ़ाए। समझ गया मेरे आका? वो शैतान एक बच्चे का रूप लेकर राहिल के पास पहुंचता है। राहिल अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तभी शैतान बाहर दरवाजा खटखटाता है। कौन है दरवाजे के बाहर? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे मेरे दोस्त आ जाओ, मैं अंदर ही हूँ। तभी वो घर में आ जाता है। तुमने रोजा रखा है? हाँ भाई, मैंने तो रोजा रखा है, लेकिन मैं कुरान नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मेरे घर में कुरान ही नहीं है। क्या अल्लाह का कुरान तुम्हारे घर में नहीं है? अरे ऐसा कैसे कह रहे हो? हर एक मुसलमान के घर में कुरान होना ही चाहिए ना भाई। कुरान नहीं तो फिर अल्लाह की रहमत नहीं। तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें आज एक नया कुरान दिलाता हूँ। शैतान के इरादे कामयाब होने वाले थे और वो कहता है, ठीक है भाई, मुझे एक नया कुरान दिला दो और मुझे पढ़ा भी देना। ठीक है। राहिल शैतान दोस्त को कुरान दिलवाने के लिए बाजार जाता है। दुकान पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कुरान रखे थे। भाईजान, ये कुरान कितने का है? बेटा ये 100 रुपए का है। ये कुरान मुझे दे दीजिए। राहिल कुरान लेता है और अपने दोस्त को हाथों में देने लगता है, लेकिन शैतान उसे कैसे ले सकता था, तो उसने अपने हाथों को गंदा कर दिया। भाई मेरे हाथ गंदे हो रखे हैं, तुम क्या मेरे घर तक चल सकते हो? वहाँ कुरान रख देना और फिर अपने घर चले जाना। अच्छा ठीक है भाई, चलो। राहिल कुरान लेकर शैतान के घर में जाता है। ये कैसा अजीब सा घर है तुम्हारा? ये तो कोई गुफा लग रही है। हाँ भाई, मैं बहुत गरीब हूँ ना, और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो मैं इसी गुफा में अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं ये कुरान यहाँ रख देता हूँ। अच्छा तो मैं अब घर जा रहा हूँ। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्त। या अल्लाह, ये कैसी आवाज थी? राहिल पीछे मुड़कर नहीं देखता और घर चला जाता है और घर जाकर दरवाजा खटखटाता है।
अम्मी जान दरवाजा खोलिए। आ रही हूँ बेटा। अम्मी जान मेरा कुरान मुझे दे दीजिए, मुझे कुरान पढ़ना है। बेटा कुरान तो तुम लेकर गए थे। नहीं अम्मी जान, मैं कुरान लेकर नहीं गया था। कुरान तो घर में है ही नहीं, कहाँ चली गई? कुरान कहीं अप्पी जान तो नहीं पढ़ रही? अप्पी जान क्या तुम मेरा कुरान पढ़ रही हो? नहीं भाई, मैं तो कुरान नहीं पढ़ रही, मैं तो किचन में काम कर रही हूँ। तभी मरियम पास जाकर देखती है कि क्या मांझ रहा है। क्या हुआ भाईजान? अप्पी जान कुरान मिल नहीं रहा है, मैं यहीं रख कर गया था। तभी बाहर से कुछ लोगों की कुरान गायब होने की आवाज आ रही थी। सब लोग बाहर जाकर देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ भाईजान? भाईजान हमारे घर के कुरान गायब हो गए हैं। या अल्लाह, ये कैसा मंजर है? कहीं कयामत तो नहीं आने वाली? क्योंकि जब कयामत आएगी तो अल्लाह ताला अपनी पाक किताब को इस दुनिया से उठा लेगा। अम्मी जान क्या हम सब मरने वाले हैं? पता नहीं बेटा, पूरे गांव से कुरान गायब होने की खबर आ रही थी। सब जगह गांव में कुरान गायब हो चुका है। क्या कयामत ही आने वाली है? बच्चों गुनाहों से तौबा कर लो, पता नहीं कब कयामत आ जाए। लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि ये काम इब्लिश शैतान का था, जिसने बड़ी चालाकी से कुरान को चुरा लिया था। तभी हाथ उठाकर सब लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें हमारा कुरान वापस दे दे, या अल्लाह हम गुनहगारों पर अपनी रहमत बरसा। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और तेज हवाएं चलने लगती है और उस शैतान की गुफा पर एक रोशनी पड़ती है और अल्लाह ताला अपने कुरान में इतनी ताकत कर देता है कि उसकी रोशनी से उस गुफा को तहस नहस कर देता है और कुरान उड़ता हुआ आसमान में आ जाता है और लोगों के घरों में पहुंच जाता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये काम तो किसी शैतान का लग रहा है। शैतान हवा में उड़ता हुआ आसमान में लटक जाता है और शैतान को गांव के सारे लोग देखते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है और तेरा अजब इस शैतान पर नाजिल हुआ जिसने कुरान चुराने की कोशिश की थी। अल्लाह तू बड़ा ही रहीम और करीम है। या अल्लाह हमें पूरे रोजे रखने की ताकत अता फरमा। आमीन। सुम्मा आमीन। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप कितने वक्त कुरान पढ़ते हैं।